Share market is a place where we sell and buy shares. Buying and selling of shares takes place in share market. Okay. Share market is a place only for this basic things. Now there are three types of share market, commodity market, and forex market. In share market, there are companies like Reliance. You'll be aware of these Tata Motors, or whatever, Jubilant Food, Burger King, whatever was now recently also you all might have come across these. This is based off share market. Our share market has indices and all. We'll be learning about that further. But before that, I'll tell you one very wonderful story I'll share with y'all. If y'all are aware of, y'all had heard one news was very trending from these news channel of these financial news channels. Somebody, he came across some shares which were, you know, lying in the cupboard of his grandfather after his grandfather passed away. If y'all are you have you heard about this story of MRF shares? Yes, ma'am. Okay. And any other? Khushbu, Preeti, Vidita, are you? No. No. And Preeti, Khushbu? No. No. Okay. Then it's a very wonderful story for you all. What happened? Like a person, they had a like small family. Okay, grandfather, parents, and their child. He was 22 year old, and their grandfather passed away. Now his father was also not that very active. Like only बस यही था कि जो कमाया खाया, that's all. तो आफ्टर द ग्रैंडफादर पास्ट अवे, उन लोग की मेन मेन चीज उनके ग्रैंडफादर के पेंशन से ही चलता था. ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ, द ग्रैंडफादर पास्ट अवे, तो इन्होंने भाई कबट वबट खोला, उसके सामान वामान वो किए, तो वहां पर इनको कोई पेपर्स मिले. ठीक है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2019. 2019 it was released on CNBC TV 18. बट उसको कोई पेपर मिले, तो वो जाके मतलब कहीं पे ब्रोकिंग या किसी को जाके दिखाया कि भाई ये पेपर्स हैं, इसमें कुछ मिलता है, ये शेयर्स वेयर्स हैं, इसमें कुछ मिलेगा मुझे. यू विल इमेजिन 1000 शेयर्स थे MRF के. and MRF की stock price is today it is 76,000. but the day he went and inquired, उस दिन उसकी प्राइस कुछ 40-50 हजार की थी. एंड 1000 शेयर्स इन अ फिजिकल फॉर्मेट. वो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और पेपर बस कहीं रख देते हैं कि ये बस जरूरी पेपर है, रख दो. हमारे इंडियंस में क्या होता है, सब जाएंगे घर, बीवी को देंगे ये पेपर, रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट कागज है, रख दो. ठीक है ना. ये दिस इज द मतलब दिस इज द लिटरेसी इन आवर फैमिलीज, इन आवर इंडियन सोसाइटी. इमेजिन, मतलब उसको बैठे बैठाए 5 करोड़ मिल गए, जहां ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग खाएंगे क्या और पेंशन अब नहीं है, चलेंगे कैसे. तो दिस इज शेयर मार्केट. in my explanation also, this is share market. ये you can go and search in YouTube also. ये है. मेरा भले थोड़ा बहुत ये होगा कि 40-50,000 हाउ मच आई रिमेम्बर, ऐसा उसका प्राइस तो था. ही वेंट मैड कि इतना, मतलब इतनी बड़ी सौगात मेरे दादाजी छोड़ के गए हैं. सो दिस इज शेयर मार्केट. लाइक इफ यू इन्वेस्ट, अभी जैसे आई टेल यू वन मोर स्टोरी. जैसे अभी बर्गर किंग बहुत चला है ना. बर्गर किंग खुला 100% ऊपर, ये सब हुआ. लाइक बर्गर किंग, देर इज जुबलियन फूड. जुबलियन फूड का भी मैं आप लोग को एक बार ये शेयर करती हूँ. जस्ट हैव अ लुक. अभी क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर भी खुला हुआ है, यू ऑल कैन सी. You can see a chart now, all of you. Yes. Okay.
नाउ दिस इज जुबिलेंट फूड। अब ये बिल्कुल एक लेमैन की तरह भी सबको समझ में आ रहा है कि ये नीचे से ऐसे 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 प्राइस गया, ये ऊपर 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 गया, ठीक है, ये सबको समझ में आ ही रहा है, एकदम बेसिक चीज है। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, yes. Yes. ठीक है ना? ओके, सो विदिता, इट्स क्लियर? Yes, I did say yes. Okay, you have switch off your video. What is this My video green is off red? right now. Yes. I'll turn it on just now. Okay, okay. ये क्या बोल रहे हो? Someone asked. What is this green and red points in These this? these are candles. I am a technical analyst, तो मेरी study इसकी ज़्यादा, I am more, my forte is on this study of these charts, but with that I do financial market also. ठीक है? Now you see, ये जैसे green और red, it started in the year. It started in the year 2010. Okay. You all can imagine, it started in the year 2010. It opened at 72 rupees. 72 rupees. I don't remember इसका IPO कितने में list हुआ था. I don't remember. Akash, you remember? Are you aware of it? No, ma'am, I'm not aware of it right now. Okay. Sorry. Okay. Further. It opened at 72, but then it has rose up. Now it is 2700. जुबलेंट फूड, डोमिनोज पिज्जा इज द फेवरेट ना, सबका फेवरेट है, तो जो चीज सबकी फेवरेट हो जाएगी ऑब्वियसली उसका प्राइस तो बढ़ना ही है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। शेयर मार्केट में क्या है ना, आप मतलब जितना इसको नटशेल की तरह यू टेक इट इनसाइड यू, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। मतलब जितना इसको सिंपलेस्ट वे में हम लोग समझ लें, समझना बस इतना है, जो चीज आप बाहर देखोगे कि बहुत उसकी डिमांड बढ़ रही है, जिस चीज का सब लोग बात कर रहे हैं, उसका वो किस कंपनी का शेयर है, वो किस चीज का शेयर है, अगर आप इतना वो करते हो ना, इतना भी अगर उस नॉलेज को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यू कैन अर्न इन लैक्स एंड इन मल्टीपल फोल्ड्स। आया जो गया जो भी है वो आप ही के पास आया, तो आप थोड़ा देख के रखिए, इसीलिए हम देख रहे हैं ट्रांजेक्शन बहुत है, यूपीआई का ही है सारा। ओके तो आप देखिएगा। ओके, इज इट ओके खुशबू? Yes. Yeah, you can mute if you talk to someone ever. Okay? Yeah. Sure. So sorry. Actually, I No, didn't it's notice okay. it. It's okay. तो I was saying this कि यही है कि मार्केट में आपके जो भी चीज चल रही होती है, when this Jubilant food had come up, तब ये डोमिनोज पिज्जा when it became so familiar, सबको जब इतना अच्छा लगने लगा, you have to think it that way कि ये कौन सी कंपनी की है, and you should buy those shares and you should keep it. अब आप समझो 72 में भी अगर किसी ने नहीं इन्वेस्ट किया, 200-300 की प्राइस में भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो जस्ट इमेजिन आज ये 2700 है, तो यू कैन इमेजिन कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट बढ़ रही है, कितने परसेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे। हम जो चीज यूज करते हैं आज, अगर आप कल से, मैं जैसे एक होमवर्क दूंगी आपको लास्ट में, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड, टू गेट दिस थिंग इनसाइड इन आवर एवरीडे लाइफ। आई विल जस्ट कम टू दैट। You can see this now, Jubilant food chart, and you can see how it rose up. You can also see the price, what I told you. It started at 72, it has come to 2700. It's clear with this? Okay? Yes. Now we'll go back to our types of market. तो ये अगर आप दो स्टोरी भी याद रखोगे ना, एक MRF की और एक इसकी, तो भी आपको शेयर मार्केट बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज तो ये है, हमारे मार्केट में जैसे सब जो डरते हैं, वो डरना नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हो उससे डर होना चाहिए। अब जो ट्रेडिंग करते हैं उनको वो डर होना चाहिए, और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग रिस्कीएस्ट होती है एवरीडे लाइफ, एवरीडे वाले जो ट्रेडर्स होते हैं,
But that also, you see, many people, they keep the control on their emotions, they do their research, they do their study, and trading से उनकी livelihood चल रही है. They earn in lakhs in months, in each day. हमारे market में एक expiry का दिन आता है, if you all have heard or I don't know, you're not aware of, जिसमें future trades होते हैं. It's on the every last Thursday of the month. On that day, you'll not imagine, traders make 1 lakh money on that particular day. But yes, with very much of detailed research and analysis and very much control of their emotions and experience of years. You cannot expect कि आज मैं सोचूं और कल मैं वैसा ट्रेड कर लूंगी. It's not like that. शेयर मार्केट में भी आपको, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हुए आए हैं, शेयर मार्केट में भी हमें एक्सपीरियंस ही ऐड करना है. That only will teach you, जितना आप उसमें अवेयर होते हो. Okay, am I clear with this Jubilant Food and MRF story? Yes. And what is share market? Okay. Yes. Okay. Any questions regarding both of these? No? Okay. Okay. Akash, it's clear I to don't have you? any question. I have a query Yeah. that Say. is related to the subject. Can I ask now or I can discuss it Yeah. afterwards? Related to share market or related to this Yeah, MRF? related to share market only. It's better I'll call you afterwards for this. नहीं बोलो, it's okay. Even if you ask a query, everyone will learn like that. ना बोलो. एक्चुअली हमारे पास एक शेयर है जो मेरी सिस्टर इन लॉ का ही है, सिप्ला का शेयर है. उसका Okay. लास्ट मैंने 6 months पहले देखा था, करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज है उसका. Okay. बट वो जो है ना, वो तो जब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में था ना, मेरे फादर इन लॉ ने लिया था, तो जैसे आपने बताया ना वो अलमारी में रखा हुआ था. इट्स Okay. लाइक दैट कि वो अलमारी में ही रखा हुआ था. वो मेटेरियलाइज्ड फॉर्म में था पहले, फिर वो डीमेटेरियलाइज भी हो गया है. बट Okay. नाम जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ का, वो उनका बिफोर मैरिज नाम से है. ओके. Okay. वो जब वो बहुत छोटी थी उनके नाम से उन्होंने लिया था. शी वाज हाँ. 10 years old then. तो अब उसका क्या हो सकता है, वो शेयर्स नहीं है, बट उनके जो डिविडेंड सर्टिफिकेट्स जो आते हैं ना, डिविडेंड जो आते हैं, उसके रिसिप्ट्स है खाली, नथिंग एल्स. शेयर्स नहीं है, लेकिन वो शेयर कहाँ है उनको भी नहीं मालूम. अच्छा, उसे तो खाली उन्होंने डिविडेंड रिसीट नहीं जो आता है. डीमेटेरियलाइज तो किए थे ना. हाँ, वो किए थे, लेकिन उनको कुछ नहीं पता है वो डीमेटेरियलाइज शेयर कहाँ है कहाँ नहीं है, पता नहीं. उसका खाली डीमेटेरियलाइज किए नहीं कि उनको खुद को कुछ याद नहीं. उसका डिविडेंड जो रिसिप्ट है ना, खाली वो आता है और कुछ भी नहीं आता है उसका. तो आप एक खाली बार वही है मुझे उसके पास. डिविडेंड का फोटो भेजिएगा, रिसीट का, क्योंकि उसमें हाँ. अगर वो नंबर होगा ना, अकाउंट का नंबर होगा, डीमैट अकाउंट का नंबर होगा, या फिर उनको जो बैंक अकाउंट है वो है, उसमें होगा कि किस में वो जा रहा है, या मतलब इट कैन बी सेंट इन दैट, देन आई विल गेट बैक टू यू. आप उसका मुझे फोटो भेजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू व्हाट कैन बी Yeah, I'll डन. call you for that. ठीक है, Okay. ठीक है, ठीक है. Yeah. Okay. Thank you. Akash, it's clear? Yes, ma'am. It is. Okay. Now next we are coming to commodity market. Commodity market है जिसमें gold, silver, सारे metals ये trade होते हैं. And forex market is the currency where these currencies are traded, dollar, yuan, and all these currencies are traded. बहुत लोग सिर्फ forex में trade करते हैं, बहुत लोग shares में करते हैं, बहुत लोग commodity में करते हैं. But those are basically traders, वो commodity और forex में करते हैं, क्योंकि उनमें वैसे investment type नहीं हो सकता है. शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग होता है. ठीक है. आप गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड बीच बीच में उसके मतलब गोल्ड में क्या, शेयर मार्केट में भी वो है, गोल्ड 20 नाम से भी ETF है. एंड गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, विच आर अगेन गिवन फ्रॉम दीज ब्रोकिंग फर्म्स ऑल्सो. जो अभी भी रिसेंटली आया हुआ है गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आपको 2.5 इंटरेस्ट मिलता है ईयरली. तो दोज ऑल्सो यू कैन डू. गोल्ड का वो एक सेफ फॉर्म है, एंड फिजिकल फॉर्म तो है ही, which we all are aware of. So if you all be interested in gold, anything, you can personally call me on my window. Send me a message, I'll get back to you. Investment के purpose में. Okay. Now next, bull market. आपने बहुत सुना होगा ये bull market, और अभी तो ज्यादा ही सुना होगा,
अभी मार्केट हाई पे है, न्यूज में या पेपर्स में आ जाता है मार्केट इज ऑन हाई, बहुत चल रहा है, सेंसेक्स 400 पॉइंट चढ़ गया, निफ्टी 500 पॉइंट चढ़ गया, ये सब अभी बहुत सुनने में आ ही रहा है. सो बुल मार्केट इज अ मार्केट व्हेन द it's on rise and the economic conditions are generally favorable. ठीक है, this is the very basic understanding. अब आप ये बताओ मुझे, फेवरेबल अभी क्या है? अभी जो हमारी बुल मार्केट है, तो अभी इसमें फेवरेबल क्या है? विदिता, कैन यू आंसर मी, व्हाट इज फेवरेबल नाउ? Vidita? Preeti, come on, you answer me. What is favorable? No. Khushbu? No. Akash? No, ma'am. No. It's very, Ma'am, very... it's better to sell the shares right now, which we have bought earlier. नहीं, वो तो ठीक है, it's better to sell. Yes, there is always, it's on high, you can sell. Okay, that is right. But अभी किस कॉन्टेक्स्ट में फेवरेबल पूछ रही, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा. मैं बोल रही हूँ इकोनॉमिक कंडीशंस आर जनरली फेवरेबल. यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना, बुल मार्केट इज अ मार्केट दैट इज ऑन द राइज एंड वेयर द इकोनॉमिक कंडीशंस आर जनरली फेवरेबल. ठीक है, तो अभी बुल मार्केट तो चल रहा है, ये सबको सुनाई दे रहा है आजकल बहुत, बुल मार्केट बुल मार्केट. मैं पूछ रही हूँ कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या फेवरेबल है जिसमें ये अभी कोरोना की वैक्सीन आ रही है, सो हो सकता है सब वापस स्टेबल हो जाए अपने फॉर्म में. राइट, एब्सोल्युटली एक्सपेक्टिंग दिस जो मार्केट है वो राइज कर रहा है. यस, एब्सोल्युटली राइट. व्हाट इज फेवरेबल, हमारी मार्केट में क्या होता है, कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना, अच्छा जो सबके लिए अच्छा होगा, उस मतलब एक्सपेक्टेशन में मार्केट गोज टू द बुल मार्केट. हमारी मार्केट एक्सपेक्टेशन में रन करती है, और थोड़ी सी भी कोई न्यूज आएगी, अभी मान लो चाइना का जो अगर आ गया कि चाइना के साथ कुछ बॉर्डर लेके अगर हुआ तो फिर गिर जाएगी. थोड़ी सी भी कोई अच्छी न्यूज आती है कि अभी जैसे वैक्सीन का आ रहा है, वैक्सीन आ जाएगी, सबको एक्सपेक्टेशन है एंड इट इज मूविंग ऑल्सो इन अ गुड पाथ, तो दैट इज द वेरी गुड फेवरेबल कंडीशन राइट नाउ, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड कोरोना फेज. तो वैक्सीन आती है तो सब अच्छा होगा, तो आएगी उस एक्सपेक्टेशन में मार्केट रन्स. ये मार्केट का नेचर है, इट रन्स ऑन एक्सपेक्टेशन. फिर अच्छा हो गया, वैक्सीन आ गई तो और दौड़ेगी, और मान लो किसी इंडियन कंपनी ने कुछ और अच्छा कर लिया तो और दौड़ेगी. इंडिया में एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन का ये है वो बन सकता है, प्रोडक्शन यूनिट वो बहुत बड़ा है, तो वो अगर इंडिया को मिल जाता है ऑर्डर और वैक्सीन वहां बनती है तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट उससे ऊपर जाएगी. फिर क्या होगा कि उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जो कंपनीज वो प्रोवाइड करेंगी, वो भी कंपनीज के शेयर्स फिर बढ़ने लगेंगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि क्या हो रहा है हमारी एनवायरमेंट में और वो किस कंपनी से रिलेटेड है, and those shares will automatically rise. ठीक है ना? Got my point? Yes, ma'am. Vidita, it's clear? Okay. Now bear market. In this year, we have seen bull market also and bear market also. This was one of the historical years in our market, because in March there was a terrible fall in 1 month which is not seen in history ever. The fall Especially in 1 month. 23rd March. Yes, that was the biggest fall. Okay, so that this year we have seen both phases which we have never seen in the same year. We have seen a bear market and a bull market. बेयर मार्केट वही सेम ऑपोजिट जो हम लोग ने बुल का बोला. अब बेयर में जब कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया, ऑब्वियसली आपका सारा इकोनॉमी ठप हो जाएगा, तो मार्केट तो गिरेगी ही गिरेगी ना. बट हाउ यू कैन मेक इट फेवरेबल फॉर योरसेल्फ,
वी शुड हैव इन्वेस्टेड एट दैट टाइम। सबको पता है इंडिया इज अ इमर्जिंग मार्केट्स है, इसमें ग्रोइंग कंपनी है। जब मार्केट गिरती है तब आपको हमेशा सोचना चाहिए कि हमें कुछ कंपनी के शेयर्स ले लेने चाहिए। इसी बेयर मार्केट में रिलायंस ने कितने न्यू वेंचर्स किए। इसी बेयर मार्केट में सारे बाहर जाने के काम बंद थे, लेकिन हमारा ऑनलाइन काम एवरी डे ऑन था, क्योंकि मार्केट्स आर ऑनलाइन। इट इज सो इजी। आप एक गेम खेलने की तरह आप कर सकते हो। आप अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे शेयर्स का क्या वैल्यूएशन बढ़ रहा है। इट इज सो इजी टू मॉनिटर, ठीक है ना। सो हमारे लिए बेयर मार्केट भी प्रॉफिटेबल है। दिस ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जैसे कुछ भी हो जाए, मार्केट का शेयर कुछ भी गिर जाए, थोड़ा चढ़ने लगता, अगर जब गिरा था तब हमने जुबिलेंट फूड ले लिया होता तो हमारा तो प्राइस उस समय भी बढ़ जाता। जुबिलेंट फूड वाज अवेलेबल इन 1400, जो आज 2700 है। जब ये मार्केट गिरी थी, आई हैड बॉट दैट जुबिलेंट फूड, क्योंकि मुझे वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो ये जब हमारा थॉट प्रोसेस पहले से होगा कि मुझे ये लेके रखना है, तो ऑब्वियसली तुमको कोई माल सस्ता मिल रहा है तो ऑब्वियसली तुमको लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी मार्केट हंट करते हैं, 3 जगह देखते हैं कि अगर हमें कोई फिर वो चीज अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है, कहीं पे 200 रुपीज डिस्काउंटेड ऑफर में मिलती है, वी गो फॉर इट, ऑब्वियसली वी गो फॉर इट। तो इन द सेम वे इन शेयर मार्केट ऑल्सो वी हैव टू मेक आवर लुक आउट कि आपको वैसे ही इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। जब गिरी है तब और खुश हो जाओ कि मैं अपने पसंदीदा शेयर ले लूं। जीरो तो होगा नहीं, कोई कंपनी जीरो नहीं होगी। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के हम लोग साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट सब यूज करते हैं, तो क्या वो कंपनी थोड़े नीचे आ जाएगी? आप ब्रश करना छोड़ दोगे? आप सोप यूज करना थोड़ा छोड़ दोगे? सोप में ठीक है हम लोग एक लिक्विड वॉश पे कन्वर्ट हो जाएंगे, मोर बेटर वर्जन पे चले जाएंगे, बट नहाना तो नहीं छोड़ेंगे। सो दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू इन्वेस्ट विच आर योर एवरीडे यूज। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। then okay, top companies under Sensex 30. Now what is Sensex? Okay, Sensex is a index. आप लोगों ने Sensex सुना होगा, ठीक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Yes, no, that is BSE. Bombay Stock Exchange is BSE. Sensex is an index. Yes, it is traded in BSE. It is traded in BSE. But Sensex is an index जो हमारे मार्केट के टॉप कंपनीज हैं उसको वो रखता है, ठीक है? उसमें टॉप 30 कंपनीज होती हैं सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स की कंपनीज का अगर आप नाम खुद भी अभी यहाँ देखो पढ़ोगे, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, आईसीआईसीआई, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। ये सारी कंपनीज आपने सुनी होंगी, आपने इसका यूज भी लिया होगा बहुत सारी चीजों का। भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, एलएनटी। एलएनटी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा होगा, एलएनटी का सिग्नल सिंबल देखा होगा। दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। टेक महिंद्रा, दैट इज एन आईटी कंपनी। एक्सिस बैंक, दीज आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। आप ये पढ़ोगे, आईटीसी, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, दीज आर द टॉप 30 कंपनीज। अगर आपको कभी कुछ नहीं भी समझ में आए, ये जो इंडेक्स होता है सेंसेक्स 30, आप इस इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो कि आप जस्ट इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तब क्या होगा, आपका फंड 500 रुपया भी इन सारी कंपनीज में इक्वली डिवाइड होके लग जाता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, इतना सारे लोगों का पैसा होता है, वो लोग एक फंड में डालते हैं, तो आप एक तरह से एक पूल फंड में घुस जा रहे हो। म्यूचुअल फंड इज जस्ट बेसिकली दैट, ठीक है? आप उसमें चले जा रहे हो, आपका पैसा 500 भी उस शेयरिंग में
चला जा रहा है। तो आप सेंसेक्स, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप सेंसेक्स या इंडेक्स फंड बोल के फंड होते हैं, उसमें आप एवरी मंथ SIP 500 का स्टार्ट कर दो, 1000 का स्टार्ट कर दो। जितना रिस्क कैपेसिटी अपनी जितनी है, जितना आपके लिए इजीली वो मूव हो सकता है वो कर दो। एंड यू शुड फॉरगेट इट फॉर 5 years to 10 years, तभी आपकी ग्रोथ आएगी। आज से आप 10 साल पहले आप देखो, सेंसेक्स वाज 25,000, अब क्या है 46,000। तो इमेजिन 47 मैम। यस 47। सो क्या होगा, आपकी ग्रोथ उतनी होती ना, ऑटोमेटिकली होगी। वी आर एक्सपेक्टिंग सेंसेक्स टू गो टू 1 lakh, imagine. So imagine how much your money will double. ठीक है ना? So this is Sensex, and these are the best 30 companies. And one more thing I would add, इनका क्या नियम होता है, एवरी 6 months अगर कोई कंपनी इसमें से परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक है टर्म, इफ वी विल गो इनटू दैट डिटेल इन माय अनदर क्लास, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर कम होता है या कंपनी की परफॉर्मेंस किसी भी तरह से कम होती है, क्या होता है, सेबी इस कंपनी को इस सेंसेक्स 30 से निकाल देती है, क्योंकि उसको हक नहीं होता है ना कि बेस्ट में वो सरवाइव करे। अगर किसी में भी, जैसे सत्यम वाज आल्सो देयर, अब सत्यम का जो या आई वांट टू आस्क कि मतलब कंपनीज तो बहुत सारे होते हैं, पर सेंसेक्स में जो बेस्ट 30 होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। हाँ, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, वी आर इन्वेस्टिंग इन अ सेंसेक्स एज अ होल। यस, सेंसेक्स एज अ होल। और ये सेंसेक्स जो तुम्हारा पैसा है वो इन सब कंपनीज में बराबर से इन्वेस्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। यस, इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड इस इंडेक्स में बेस्ट 30 कंपनीज ही अलाउड हैं रहना। अगर किसी भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होता है, दे चक इट आउट, उसको निकाल देते हैं उस सेंसेक्स 30 से। ये नियम है सेबी का। सो जब हमें बिल्कुल ही बेसिक करना है तो या इंडेक्स में डाल दो, या किसी कंपनी का नाम सुना भी है तो ये देख लो कि अब जैसे मान लो ICICI बैंक का ही समझ लो कि आता है, कभी जो बीच में न्यूज आई थी ICICI बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा, 2-4 साल पहले आई थी न्यूज, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं जब चंदा कोचर थी उसमें। तो उस समय ये सब न्यूज पे प्राइस बहुत नीचे आ गई थी। अभी भी जैसे येस बैंक का कुछ दिन पहले आया था, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, इन सब बैंक्स को ये लोग पुल अप करेंगे, तो बहुत लोगों ने अभी भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तब आपको क्या, ये कंपनी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है। और आप ये तो चेक कर ही सकते हो कि ये कंपनी इंडेक्स में है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट तो है। हम पैसा इन्वेस्ट अगर किसी कंपनी में कर रहे हैं तो भी हम वन ऑफ द बेस्ट में ही कर रहे हैं। सो नॉट टू वरी। मेरा बोलने का मतलब ये कि ये सब बिल्कुल ही हमें स्टार्टिंग में समझने के लिए ये बिल्कुल बेसिक है। इन्हीं की किसी कंपनी में करो या तो इंडेक्स में कर दो, ये 2 सिंपल चीजों में आप चल सकते हो एज अ स्टार्ट। या विदिता, सेंसेक्स में इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म होता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म ही होता है? शॉर्ट टर्म भी होता है क्या? जैसे यू सेड 5 to 10 years का ही होता है। इफ यू डू 5 to 10 years यू विल अर्न गुड प्रॉफिट। इफ यू डू शॉर्ट टर्म तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा, ये फर्क है। अभी जो इस साल हुआ वो वैसे हमेशा कभी भी नहीं होगा। जैसे इस साल तो सेंसेक्स 35 भी गया, 46 भी आ गया, वो हर साल नहीं होगा, इसी साल हुआ है वैसा। तो अगर आप करोगे भी तो आप या बोलो। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म। या विदिता 1 minute प्रीति, या विदिता कंप्लीटेड। सो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ अगर। या शेयर मार्केट में बेस्ट होता ही ज्यादा लॉन्ग टर्म है, तभी आप मल्टीपल फोल्ड्स तभी आप करोगे। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करके एक परसेंटेज पे जाना है, वो भी आपको FD से बेटर देता है। अगर ट्रेडिंग करके भी करते हो तो वो भी आपको FD रिटर्न से बेटर देगा। अभी इन दिनों में आपने देखा होगा कि FD के रेट्स नीचे हो गए हैं। नाउ FD हैज कम टू 4 point something,
वाई? बिकॉज मार्केट्स आर गोइंग अप और लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करवाना भी है, एंड जितना हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उतना एफडी के रेट्स नीचे जाएंगे। आपको पता है बाहर के सारे वर्ल्ड इसमें एफडी के रेट्स 1% या माइनस भी है, यूएस में माइनस है, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू इन्वेस्ट इन दीज, दे वांट पीपल टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट कंपनीज। वहां पर कंपनीज डिविडेंड भी नहीं देती है, दैट इज अनदर लॉजिक ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वो लोग देंगे डिविडेंड, वो बोलते हैं आप डिविडेंड का पैसा लेके क्या करोगे, आपका वही पैसा हम उतना 2 टाइम्स आपको ग्रो करके देंगे। तो एक इंडियन मार्केट और बाहर की मार्केट में ये सब थोड़े से बेसिक वो हैं, बट हियर वी नीड टू बी हैव दिस फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या प्रीति, व्हाट यू वर सेइंग? आई एम सेइंग दैट कि सपोज वी इन्वेस्टेड एट प्रेजेंट इन सेंसेक, ठीक है, उसमें एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, और वो कंपनी कुछ दिन बाद आउट ऑफ 30 से वो चली जाती है, उसको निकाल दिया जाता है, तो फिर उस टाइम क्या होता है फिर इन्वेस्टमेंट का अपना? एक्चुअली वो डिपेंड करेगा, अगर मान लो सत्यम की तरह, जैसे सत्यम निकाल दी गई थी, ठीक है, फिर सत्यम में तो क्या वो हमें बेसिक समझना पड़ता है कि किस वजह से वो निकली। अब सत्यम निकली थी क्योंकि उसमें एक बंदे ने फ्रॉड किया था, कंपनी का या आईटी स्ट्रक्चर वो सब तो कुछ खराब नहीं था, इसीलिए महिंद्रा ग्रुप ने उसको बाई किया और उसने अपना बहुत अच्छे वैल्यूएशन में उसको बहुत अच्छी कंपनी मिल गई और उसने अपने महिंद्रा एंड महिंद्रा में मर्ज कर दिया और उसकी बिजनेस ग्रो कर गई। ठीक है, तो ये सत्यम वाला चीज जो था वो हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल था। जिन लोगों ने, अब मेरे पास सत्यम था, मैंने तो सत्यम बेच दिया जिस दिन मैंने ये स्कैम सुना, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय इट वाज ट्रेडिंग एट 125 और 5 दिन में ही इट केम टू 25, तो मैंने 120 में बेच दिया, क्योंकि जब स्कैम आता है तब तो आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि वो प्राइस तो बहुत बुरी तरह इरोड होगी, क्योंकि फ्यूचर क्या होगा उस दिन तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन बाद में जब सत्यम महिंद्रा ने लिया या ये